Hello everyone, welcome to APTI PLUS Academy for Civil Services. This is a special video on the PIB monthly compilation, and I'll be discussing PIB for the month of December 2020. As you know, PIB is one of the important supplement when it's come to civil services examination. So I'll be discussing the PIB, and I have segregated the entire theme of this month on particular section like General Studies Paper 2, 3, Short Liner and Foreign Policy. So we'll be understanding each news so that they can help you in prelims and mains examination. So let's get started. So these are the list of the content that I'll be discussing with you. First, I have segregated the news in the General Studies Paper 2. The second segment would be the General Studies Paper 3, whatever news that is relevant for General Studies Paper 3. The third section or the content is foreign policy and the defense exercises that took place in the month of December. And the last is the short liner that also has been reported that could be relevant in the prelims examination. So let's get started with the first section, that is General Studies Paper 2. And the first news that we are discussing is Hospital Management and Information System. So amid the COVID-19, it has been seen that the hospital management has become very significant. So specifically, we'll be discussing about the Hospital Management Information System, also known as HMIS, which has been recently launched, right? बात करें अगर HMIS के, this was bring a paradigm shift in the healthcare that would be maintained by the Indian Railways. So this HMIS is specifically meant for the Indian Railways. और जो ये नई system होगी, this will improve the quality of the health services and aid in utilization, how it can be resourceful in the transparent manner. So whatever problems, loopholes that were there in the health management information system, that can be overcome with this system, right? अब बात करें अगर पेशेंट्स की, तो पेशेंट्स वेटिंग टाइम एट द हॉस्पिटल वुड बी मिनिमाइज्ड और जब मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे पेशेंट्स के, दैट वुड बी अवेलेबल विद द टीम्स ऑफ डॉक्टर ऑल द टाइम. व्हाई? बिकॉज वी हैव द health management information system which would be gathering all the data about the information of a patient which can be available and accessible to the doctors, right? It is just like e-health card which was recently launched by the government also. Now what is HMIS? अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया, this is launched by Railways and this is developed by Indian Railways in coordination with the Railtel Corporation Limited. Railtel is again one of the significant PSU of Indian government which take care of all the internet and Wi-Fi services in India. तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें HMIS की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगी. फर्स्ट, इट वुड बी हेल्पफुल इन द क्लिनिकल, डायग्नोस्टिक, फार्मेसी, एग्जामिनेशन एंड इंडस्ट्रियल हेल्थ. और जो कोर ऑब्जेक्टिव होंगे HMIS के, दैट विल इंक्लूड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑल हेल्थ फैसिलिटीज एंड इट्स रिसोर्सेज. सेकेंड वुड बी तो किस तरह से जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाए अक्रॉस द हॉस्पिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल. सो वी हैव टू सी द फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल, हाउ वेल दे आर फंक्शनिंग. The third would be impart quality health care to its beneficiary. So whatever benefits that need to be availed by the citizen of that particular region has to be the exact beneficiary. Now fourth is improving the patient turnout time. So patient turnout time means कि जितने भी लोग की enrollment हो रही है उनमें से कितने लोगों को actually benefit मिल पा रही है. And the last would be generate and maintain the EMR. This is electronic medical records for all the patients. As we are discussing this on the HMIS basis, which is a digital platform, so every record would be maintained digitally. Now the second news, that is electricity rights of consumer rule. So this is again significant news. This talks about how Union Ministry of Power has promulgated laying down of the right to power to the consumer in the country. और बात करें अगर इस तरह के rules की, so this rule shall empower the consumer of electricity and add the rule to emanate the conviction of the power system. जिस तरह से जो कंज्यूमर होंगे, खास करके अगर कंज्यूमर राइट्स की बात की जाए, they would be getting the reliable service and quality electricity. Because still in India we have problem regarding to the electrification and the electrification especially in the rural India. तो वहाँ पे एक कोशिश की गई है कि how the Ministry of Power can take all its best effort so that the right of power to the consumer in the entire country should prevail. Now talking about the area that would be covered under the electricity right to consumer rule. So the first is right of consumer and obligation of distribution licenses. जो license मिलनी है या जो obligations होगी कंपनी की तरफ से, that has to be make mandatory. Release of new connection and modification in the existing connections. जो भी existence connection था या जो नए connections हैं उसमें क्या किसी को modifications की जरूरत पड़ेगी, that would be looked upon with the electricity right to consumer rule.
The third would be metering arrangement, and the last is billing and payment. So talking about the payment, everything has been made ऑनलाइन वर्चुअल मोड से यूपीआई के थ्रू या फिर आप किसी डिजिटल पेमेंट के मोड से भी अपने पेमेंट्स को कर सकते हैं. सो दीज आर द एरिया दैट वुड बी कवर्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स. Now talking about the disconnections and reconnections, these are the two important point. तो यहाँ पे जो चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा that would be reliability of the supply. This is the first consideration. Second is consumer as prosumer. The third would be standard of performance of the licenses. So standardization of the performance for the licenses would be a necessary part, and compensation mechanism. If there is a compensation that is required, that would be also be provided. Call center provide की जाएगी consumer services के लिए, so that they have 24/7. So this is basically in the urban areas. अगर rural areas की बात करें तो एक specific time होती है from 9 to 6. They would be provided the customer or call centers. Now grievance redressal mechanism, this would be something which would be very inevitable part of the disconnection and reconnection, because the consumer के जो grievances है that is not being properly addressed in the country like India. और खास करके disparity की अगर बात करें तो rural area और urban area में अभी भी बहुत ज़्यादा disparity है. So that would be taken into the consideration. Now अगर बात करें release of new connection and modification on the existing connection, so there are some points that has to be looked upon. Like first is transparent, simple and time bound process रखी जाएगी. Second would be application has an option of online application. जो applicants होंगे उनके पास online applications की भी options होगी, चाहे वो new connections हो, renewal हो या फिर payments की बात हो. And maximum time period of 7 days in metro city. This is the timeline which has been provided. और जो non metro city या जो municipal areas होंगे वहाँ पे 30 days, 15 days के लिए. And for the rural area, the time that would be provided would be 30 days to provide the new connection or modification in any existence. तो this can be again relevant. आपको ये ध्यान रखना है कि अगर metro cities की बात करें, in metro it is 7 days, in the municipal area it is 15 days, and in the rural area it is like 30 days, right? So these are the three timeline or the duration of the time that is provided for the new connection or the modification in the electricity connections. Now redressal for the consumer dispute. Consumer dispute has again become very significant in this era. और जिस तरह से बात करें कंज्यूमर के अगर किसी भी तरह की चीटिंग होती है, वी हैव अ प्रॉपर redressal mechanism for that. सो प्रेजेंटली रिसेंट में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे हनी के ब्रांड्स थे, देयर वर बीइंग रिपोर्टेड एज एन अडल्ट्रेटेड विद द शुगर सिरप, और जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उन्होंने इस चीज़ का नोट लिया एंड दे हैव asked the Central Consumer Protection Authority, also known as CCPA, उनको उन्होंने इस मैटर को ध्यानपूर्वक and taken all the stringent action need to be taken, so they have transferred this matter to the CCPA. CCPA की अगर बात करें, FSI की एक बॉडी है, so इसकी जो अपनी सेक्शन है सेक्शन 19/2, this Empower Consumer Protection Act of 2019, और जो प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे जो हनी के ब्रांड्स को लेकर के, सो दैट वुड बी अ मैटर दैट वुड बी रेफर टू द FSI, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है एक फूड रेगुलेटर है इंडिया में. दिस इज एपेक्स बॉडी दैट लुक इनटू एनी मैटर दैट इज रिगार्डिंग द फूड्स, राइट. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया की बात करें, वी ऑलरेडी हैव डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर. दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल डिपार्टमेंट बॉडी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं उनको ध्यान रखती है, चाहे वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हो या फिर कंज्यूमर के राइट्स हो. सो अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, टॉकिंग अबाउट द CCPA, दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट द मैटर. किस किस तरह के मैटर पे जहाँ पे अगर जो कंज्यूमर की जो राइट वायलेट हो रही है वहाँ पे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो वहाँ पे, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो, तो ये सारी चीज़ों की अगर कोई भी कंप्लेन हो या फिर इन सारी चीज़ों की जो चेक एंड बैलेंसेज है इंडिया में, वो CCPA को दी गई है, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें इंडिया में, तो कंज्यूमर हैव बीन लॉन्ग रिसीविंग एंड मार्केट मैनिपुलेशंस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंडिया में स्टिल इट इज प्रेवलेंट. दैट इज व्हाई इट ऑलवेज देयर इज एडवर्टीजमेंट इन नेशनल न्यूज़पेपर also, or in the in the media platform also, कि government, the consumer should be taking it primemost things so that they are not being cheated. क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे redressal mechanism है, but actually people are not aware of this. तो CPA बात 2019 की बात करें, so this resonate with every major concern that a honest consumer may face.
Now it has shifted the burden of accountability and cautions to the manufacturers. जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी अगर कोई मैन्युफैक्चर दे रहा है या कोई सेलर दे रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, तो ही इज लाइबल टू बी पनिश्ड बाय द अथॉरिटी दैट इज देयर इन इंडिया, राइट. चाहे वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी हो या CCPA हो, ये सर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, दे वुड बी गिविंग स्ट्रॉन्ग एक्शन सो दैट मिसलीडिंग एंड जो कंज्यूमर के साथ जो भी अगर अकाउंटेबिलिटी की बात कीजिए, सो दे बॉडी आर इंटरेस्टेड टू इंश्योर कि ये सारी चीज़ें उनको ध्यानपूर्वक की जा रही है, राइट. Now coming to the social economic profiling of the PM Swanidhi, this is again important news. I have discussed this news in our daily news analysis as well, but I'll be giving you some more important point which is relevant with regard to this. So the Ministry of Housing and Urban Affairs launched the program called Socio-Economic Profiling. This is also known as PM Swanidhi. जो beneficiaries होंगे इस family के, they would be provided with additional component under the PM Swanidhi. और इसमें कंप्लीट प्रोफाइल जो रखी गई है हर एक इंडिविजुअल बेनिफिशरीज की विद देयर फैमिली मेंबर वुड बी प्रिपेयर्ड. तो एक इंडिविजुअल की जो फैमिली होगी उसकी पूरी जो फैमिली हिस्ट्री होगी दैट वुड बी प्रिपेयर्ड, ताकि सारे लोगों को उसकी बेनिफिट्स मिल सके. Now, what is PM Swanidhi scheme? You must be aware, as I've told you in the beginning, this is launched by Ministry of Urban Housing and Urban Affairs. तो ये खास करके जो लॉन्च की गई थी जब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर PM स्वनिधि जो स्कीम थी, उसमें मेन पूरी कोशिश की गई है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सिर्फ लोन ही नहीं दिया जाए, बट कि उनकी जो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, वो भी की जाए. दिस इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द अफोर्डेबल होम और द लाइवलीहुड टू पीपल, बट ऑल्सो गिविंग द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. तो जो स्कीम थी दैट विल फैसिलिटेट द कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल. उनको 10,000 रुपये तक की कोलेटरल फ्री लोन दी जाएगी. कोलेटरल फ्री मतलब उनको भी किसी भी चीज़ को कोई गिरवी नहीं रखना पड़ेगा. दे डू नॉट नीड टू कीप anything with the bank, and they would be eligible to get 10,000 rupees as a loan. So this is only for the small और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, खास करके इनफॉर्मल सेक्टर में, उनमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी. और अगर बात करें इस तरह की बेनिफिट्स की, तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर वुड बी गेटिंग द बेनिफिट फॉर इट टू रिज्यूम देयर बिजनेसेस इंक्लूडिंग द सराउंडिंग इन द पेरी अर्बन और इन द रूरल अर्बन एरियाज, खास करके रूरल एरियाज में. नाउ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस वुड इंक्लूड, कौन कौन से ऐसे हैं खास करके ऐसे जो बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट दे रही है अंडर द PM स्वनिधि स्कीम. सो द फर्स्ट इज इंटरेस्ट सब्सिडी. 7% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी एट द रेगुलर रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर वो रेगुलर रीपेमेंट करते हैं लोन की. कैशबैक दैट इज अप टू 1,200 रुपीज़ पर एनम ऑन द अंडरटेकिंग प्रिस्क्राइब्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन. अगर कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है तो उनको उसके कैशबैक भी मिलेंगे अप टू 1,200 रुपीज़. एंड एलिजिबल फॉर इनहांस्ड नेक्स्ट ट्रांचेस ऑफ लोन. If they have good performances, they would be eligible for the next another level of loan or higher level of loan, which can be availed by them individual. Now, scheme for approval of hygiene rating audit agencies. So this is also regarding to the food safety. So let's see what are the details. The Quality Council of India, QCI, we known as QCI, has come up with a scheme called Approval of Hygiene Rating Audit Agency. ये खास करके उस जगह पे काम करेगी जहाँ पे हाइजीन रेटिंग की जाएगी. दिस वुड बी इंक्रीजिंग द नंबर एंड रिकॉग्नाइजिंग द hygiene rate auditing agency in the country. So Quality Council of India is again an important body. You just need to check their website क्योंकि prelims में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. Now, what is फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम? क्या है ये? फसाई की अपनी एक इनिशिएटिव है जहाँ पे फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम्स के लिए सर्टिफिकेशन दी जाएगी फॉर फूड बिजनेसेस सप्लाइंग फूड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. ऐसे लोग, ऐसे खास करके एंटरप्राइजेस जो बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर से लिंक्ड है, उनकी जो फूड सेफ्टी, जैसे अगर आप बात कर सकते हैं जोमेटो है, स्विगी है, या और ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी एंटरप्राइजेस जो फूड सप्लाई में रेडीमेड फूड्स डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, सो उन सारे चीज़ों को फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम के अंदर रखा जाएगा. Now the food establishment are rated based on their food hygiene, safety condition, and they are observed from time to time, and a audit would be done to make it clear कि किस तरह की performances रही हैं उनकी. Now the hygiene rating would be form of smile like 1 to 5, and certificate would be displayed prominently to the consumer facing area. So a survey would also be done from the consumer end to get an idea, to get actual level of satisfaction that consumer is having.
तो बात करें इस स्कीम की, दिस वुड अलाउ कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस डिसीजन, जहाँ पे कोई भी फूड आउटलेट्स है दैट वुड बी इनकरेज। अगर कोई बिजनेस ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हाइजीन और स्टैंडर्ड को नहीं मेंटेन किया जा रहा है, सो अ सर्वे वुड बी टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर, और जो रिकॉग्नाइज्ड हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी है दैट विल वेरीफाई द कंप्लेंट विथ रिगार्ड्स टू द फूड हाइजीन सेफ्टी प्रोसीजर्स दैट इज लेड बाय द एफएसआई। जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी जो प्रॉपर गाइडलाइन होगी, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है, कोई कंप्लाइंसेस नहीं करती है, सो अ स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दैट फूड जाइंट्स and they have to pay penalty for that. So coming to the general studies paper 3, whatever news that is relevant for the general studies paper 3, we have segregated the news on that part. So coming with the first news, that is narrow band internet of things. So what is it is? So बात करें BSNL की, तो BSNL ने पार्टनरशिप किया है स्काइलोटेक के साथ. दिस इज एन रिसेंटली अनाउंस्ड ब्रेक थ्रू सैटेलाइट बेस्ड NB-IoT दैट इज कॉल्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग. और इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं खास करके आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है. सो इंडिया नाउ हैव एक्सेस टू एम्बिशियस फैब्रिक ऑफ कनेक्टिविटी, जहाँ पे मिलियंस ऑफ अनकनेक्टेड मशीन्स, सेंसर और इंडस्ट्रीज के जो IoTs हैं, खास करके इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज हैं, वो कनेक्टेड हैं. ऑन दैट पार्ट BSNL और एनी अदर कंपनी आर एनहांसिंग देयर सर्विसेज टू इंश्योर कि जो IoT की जो सर्विसेज है वो प्रिवेल कर सके. नाउ हाउ इट विल वर्क, कैसे ये चीज़ें काम करेगी. तो फर्स्ट इट विल एनेबल टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर मिलियंस ऑफ अनकनेक्टेड मशीन्स, सेंसर, इंडस्ट्रियल IoTs या डिवाइसेज है, उनके साथ कनेक्ट करेगी. और अगर बात करें NB-IoT की, तो एक वायरलेस कम्युनिकेशन है जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स वुड बी प्रिवेलिंग, बिकॉज इंटरनेट ऑफ थिंग इज समथिंग विच हैज़ अ इंटायर इकोसिस्टम, राइट. एक इकोसिस्टम के साथ क्रिएट करने की, कनेक्ट करने की बात की गई है. एंड इट बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, जिससे अगर LP WAN की बात करें, या फिर इनेबलिंग डिवाइस टू कनेक्ट दैट डिवाइस दैट नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा लो बैंडविड्थ के साथ, या फिर लॉन्ग बैटरी लाइफ की अगर चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो इस तरह के इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी उसकी ज़रूरत पूरी की जा सकती है. Now it is efficient, cost-effective technology that would enable the deployment of IoT to the masses. Internet of Things itself means that is connected to masses, but the ecosystem is such large that a lot of people can take benefit out of it. बहुत ही cost effective होती है. तो इस तरह के पॉइंट आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं. नो यूजेस और एप्लीकेशंस की बात करें, सो दैट वुड बी स्मार्ट वेस्ट, पार्किंग एरियाज में, कनेक्टेड एग्रीकल्चर, क्रॉप, सॉइल मॉनिटरिंग. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वुड बी द बेनिफिट ऑफ दिस एप्लीकेशंस, राइट. Now coming to the internet of things, अगर internet of things की बात करें, because UPSC has already asked question on internet of things, prelims के लिए भी काफ़ी relevant है ये. तो एक नेटवर्क होती है जहाँ पे फिजिकली डिवाइस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रॉनिकली, सॉफ्टवेयर के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, ताकि ये इनेबल कर सके ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा. आजकल बहुत सारी ऐसी रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स है, या फिर आपके माइक्रो ओवन्स होते हैं, टेलीविजन्स होते हैं, रूम एयर ब्लोअर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड है. एक इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं वेयर यू कैन वर्चुअली ऑपरेट ऑल द इक्विपमेंट्स, राइट. सो दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. और IoT की अगर बात करें, तो एक प्लेटफॉर्म है आज के जनरेशन्स की 21st सेंचुरी में, जो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रमोट करती है. And it can also be used in improving the crop yield to face the world growing population. जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस जगह पे अब काम को आसान करने के लिए क्रॉप मैनेजमेंट में या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी IoT की सर्विसेज को अवेल किया जा रहा है. नाउ जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन, दिस इज JVPC. This is again a carbine which is being indigenously developed. You can see this carbine machine gun which is being indigenously developed. तो बात करें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, DRDO ने डिज़ाइन किया है प्रोटेक्टिव कार्बाइन. क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. सो व्हाट इज JVPC? So this is an gas operated semi bull automatic weapons है that has more than 700 RPM rate of fire, right? It can round 700 round of fire in a single go. और इफेक्टिव रेंज की अगर बात करें कार्बाइन की, दिस इज मोर देन 100 mm एंड विथ इज 3 kg. तो इसकी जो पूरी वेट है मशीन गन की, दैट इज 3 kg.
फीचर्स की अगर बात करें, बहुत ही पोटेंट मशीन्स बनाई गई है फॉर काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, लाइक इन जो हमारे अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एलीट गार्ड्स है जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एसपीजी के पास तो 6 सॉयर और वो अलग लेवल के गन्स रखते हैं बिकॉज दे प्रोटेक्ट द वीआईपी और द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वी हैव पैरामिलिट्री फोर्सेज, वी हैव सीआरपीएफ की एलीट है, कोबरा कमांडोज है। इस तरह के जो कमांडोज होते हैं इंडिया में उनको इस तरह की गन्स प्रोवाइड की जाती है। Now the carbine has been designed as per Indian Army GSQR, इंडियन आर्मी की जो अपनी स्टैंडर्ड है आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, उनकी पुणे बेस्ड की जो लैबोरेटरी है डीआरडीओ की, वहाँ पे इसको बनाया गया है। एंड द वेपन इज मैन्युफैक्चर्ड इन द स्मॉल आर्म फैक्ट्री ऑफ कानपुर। और एम्यूनिशंस की अगर बात करें, जो एम्यूनिशंस उसमें यूज होती है, दैट इज बिंग डेवलप्ड इन द किरकेन, पुणे। Now, aerosol in the Indo-Gangetic plain, news was there with regards to environment and how aerosol is impacting the Indo-Gangetic plain. And this is very possible question for your prelims examination, considering the fact कि environment का बहुत ही ज़्यादा dominance होता है paper में. So scientists have found कि aerosol, that is a black carbon and dust, which make Indo-Gangetic plain one of the most populated region in the world. और this has led to the increase in the incident of high rainfall फुटहिल्स ऑफ हिमालयन रीजन, जिसकी वजह से जो पूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस है उससे छेड़छाड़ हो जा चुकी है। नाउ द टीम ऑफ रिसर्चर, आई विल नेम सम ऑफ द इंस्टीट्यूट, दिस वुड बी नॉट दैट रेलिवेंट बट फॉर यू इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है राउरकेला, लाइप्जिग इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, यूनिवर्सिटी ये जर्मनी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और आईआईटी कानपुर ने सपोर्ट किया है गवर्नमेंट के डीएसटी क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम को, जिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही है, राइट, कि एरोसोल किस तरह से जो प्रेसिपिटेशन में क्या इम्पैक्ट कर रही है और हिमालय रीजन में, इंडो गैंजेटिक रीजन में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो टीम ने ये फाउंड किया कि जो हाई प्रेसिपिटेशन इवेंट्स हैं, खास करके हाई एरोसोल लोडिंग्स पे और हाई मॉइस्ट स्टैटिक एनर्जी पे, सो दे हैव द ह्यूज पोटेंशियल की जो लेटेंट हीट है उसके बाद ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट देयर आर सम इम्पैक्ट दैट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। उसको कैसे और अच्छा किया जाए है, इस पर अभी भी स्टडीज चल रही है। नो दे हैव सजेस्टेड सम ओपिनियन। सो अगर बात करें इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की, तो ये इंडस गंगा प्लेन और नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन के अंदर आती है। बहुत ही फर्टाइल एरिया है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वर्चुअली अगर बात करें बांग्लादेश एंड सदर्न प्लेन ऑफ नेपाल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। नाउ इंडो-गैंजेटिक प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 ड्रेनेज बेसिन, जहाँ पे दिल्ली रीजन की अगर बात करें तो वेस्ट पार्ट ड्रेन होती है एक टू इंडस एंड द ईस्टर्न पार्ट कंटेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। एंड टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, सॉइल फर्टिलिटी की अगर बात करें तो इंडो-गैंजेटिक प्लेन हैज़ ह्यूज इंपॉर्टेंस टू इंडियन एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जोग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। एरोसोल की अगर बात करें, एरोसोल कैन बी अगेन वेरी रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एरोसोल इज द सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर और अनदर गैसेस। एरोसोल कैन बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, राइट। सो जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ नो व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। बात करें अगर बल्क ऑफ एरोसोल्स की, तो 90% ऑफ द मासेस हैव नेचुरल ओरिजिन। तो जितने भी एरोसोल्स आप देख रहे हो अपने इन्वायरमेंट के आसपास, दे मोस्टली हैव द नेचुरल ओरिजिन। 90% में नेचुरल ओरिजिन है और 10% आर्टिफिशियल। Now mRNA vaccine, considering the fact that we already had a vaccine and Prime Minister has announced from 16th of January the vaccine would be rolled out in the entire country and the process of vaccines transfer from one state to the another has already been begun. So आपके लिए जानना है ज़रूरी है कि mRNA की जो इस बार वैक्सीन से कैसे डिफरेंट है। So the first indigenous developed mRNA vaccine, this has been received approval from the India Drug Regulatory to initiate phase 1 and phase 2 human clinical trial. अगर novel mRNA vaccine candidate की बात करें, so we have some variety of it. It is known as HGC019 and this has been developed by the Genova, Pune based एक इंस्टीट्यूट है, खास करके जो ड्रग्स बनाती है और जो भी जितने वैक्सीन पे काम करती है। दिस इज एनडीसीपी मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम कर रही है। तो किस तरह से ये वैक्सीन बनेगी एमआरएनए वैक्सीन की अगर बात करें, जनरली एमआरएनए वैक्सीन डज नॉट यूज कन्वेक्शनल मेथड टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स।
जो नॉर्मल तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स होती है उस तरीके से mRNA रिस्पॉन्स नहीं करती है बॉडी में। mRNA क्या करती है, वैक्सीन कैरियर है जो कि मॉलिकुलर इंस्ट्रक्शंस लेती है प्रोटीन से इन आवर बॉडी, एंड सिंथेटिक RNA को वायरस जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ बाइंड करके उस चीज़ के जो फंक्शंस है या जो इन्फेक्शंस है उनको रोकती है। नाउ जो होस्ट बॉडी है दैट प्रोड्यूस्ड वायरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिकॉग्नाइज बाय मेकिंग बॉडी माउंट अगेंस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द डिजीज। तो जो स्पाइक प्रोटीन है वो जाके बाइंड कर जाती है और वायरस को वहाँ पे उस प्रोटीन के जो एलिमेंट्स हैं उस पर अटैक करने से रोकती है। Now, mRNA-based vaccine are scientifically ideal choice for to address the pandemic. अगर present situation में देखें and specifically talking about COVID-19, this technology or this method of vaccine development is something which is very appreciable। और इस टाइम पे एक्सपर्ट की ओपिनियन है कि mRNA जैसी जो वैक्सीन होगी वो बहुत हद तक कारगर होगी in terms of the COVID-19 infections। Now, mRNA considered to be safe and it is non-infectious, non-integrated in nature or degradation by standard cellular mechanism. And these are expected to be highly efficacious because जो inherent capacity है इसकी that is transferable to protein structure inside the cell cytoplasm, right? So you can see the diagram, ये यहाँ पे जाके bind करती है और cell के जो cytoplasm है उसको effect होने से बचाती है। Additionally, mRNA vaccines are fully synthetic and they do not require a host to grow like eggs or bacteria. Now they can be quickly manufactured in a passive manner जहाँ पे GMP conditions ensure करेगी availability and accessibility of mass vaccination of the sustainable vaccines। जो sustainable basis पे ये सारी की जाए। और mRNA की अगर बात की जाए so entire world has developed the vaccine in terms of the mRNA, and mRNA would be a great revolution after the COVID-19 in the country। Now coming to the other topic, that is WHO World Malaria Report. This type of report is very important for your prelims examination. So we'll see what are the details that is coming from this report. So World Malaria Report, also known as WMR 2020, was released by WHO. So this organization is important, which gives the estimated case of malaria across the world। पूरे विश्व भर में जो मलेरिया की केसेस हैं, किस तरह की कंडीशंस हैं, कितनी केसेस रिपोर्ट की गई है, वो WHO उसकी फिगर देती है। Now based on the mathematical projections, they indicate that India has made considerable progress in reducing the malaria burden। So this is the good news coming for India कि इंडिया ने ओवरऑल अपने एफर्ट्स के साथ जो मलेरिया की बर्डन है इंडिया जैसे कंट्री में उसको कम किया है। सो दिस पॉइंट कैन बी अ फोल्डर पॉइंट फॉर योर एसे पेपर इफ यू आर राइटिंग अ एसे और इफ यू आर राइटिंग एनी sort of answer in the general studies paper 3, you can use this point, right? And India is only high endemic country which has reported the decline of 17.6% in 2019 as compared to 2018। So you can see the performance of India in terms of malaria। Now annual parasite incidence की अगर बात करें, it's also known as API। This has reduced by 27.6% in 2018 compared to 2017 by 18.4% in 2019। This was compared by 2018 data। So reduction हुई है 18.4% से। Now India has sustained API less than 1 since year in 2012, right? So performing considerably well, India has done well in terms of reducing the overall population, overall number of malaria। Now कुछ important facts की अगर बात करें तो India has also contributed to the largest drop in the cases of region-wide from approximately 20 million to about 6 million। So you can see this number coming from 20 million to 6 million। Now India has achieved a reduction of about 83.34% in malaria morbidity and 92% in malaria mortality between year 2000 to 2019। So this is the number, this is a figure। Now the state of Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Meghalaya, Madhya Pradesh have disproportionately accounted for nearly 45.47% of malaria cases। So these states account for the maximum number of malaria cases in India। Now what is malaria? If you're discussing malaria, it is important for you that you know how malaria, what sort of disease it is and how dangerous it could be to mankind। So it is a life-threatening disease। It is typically transmitted from the bite of Anopheles mosquito and it affects Plasmodium की अगर बात करें तो Plasmodium parasites होती है। Now when this mosquito bite individual, the parasite is released into the bloodstream of the body। जिसको भी उसने बाइट किया उसके ब्लड स्ट्रीम में ये पैरासाइट इंसर्ट हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। नाउ वंस द पैरासाइट इंटर्स योर बॉडी
they can travel to your liver and they can mature, and after maturity over the parasite the bloodstream begin to infect the RBC, that is red blood cell. तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है RBC को. Now malaria is typically found in the tropical and subtropical climate where the parasites can live. Now coming to the other segment of the discussion, that is foreign policy and defense exercises. So we'll see what are the important points. First is ASEAN Defense Minister Meeting Plus. So this was the 14th ASEAN Defense Minister Meeting which was organized recently in Hanoi in Vietnam. और ये एनुअल मीटिंग है जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर साथ के साथ 10 आसियान कंट्रीज के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर के मेंबर थे और 8 पार्टनर कंट्रीज थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया. सो दिस ईयर मार्क्ड द 10th ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ ADMM+ फोरम. तो ये क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. सो टॉकिंग अबाउट ASEAN डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ये जो मीटिंग थी दिस वाज ASEAN सिक्योरिटी कमेटी ASC प्लान एक्शन अडॉप्टेड की गई थी 10th ASEAN समिट में, जो कि स्टिपुलेट करती है ASEAN की फ्रेमवर्क को लेकर के क्या काम आगे होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, एंड एनुअल ADMM को लेकर के. नाउ दिस इज द हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेशन एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म ऑफ द ASEAN. वी आर टॉकिंग अबाउट ADMM. सो व्हाट इज the objective of this entire initiative or entire 10th year completion of the ASEAN? So to promote the regional peace, stability in the dialogue, cooperation in the defense and security, और साथ के साथ जो डिफेंस, जो सीनियर डिफेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स के जो डायलॉग होते हैं, टू मेक इंश्योर कि जो आसियान कंट्रीज हैं उनके जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश की जाए. Now to promote the mutual trust and confidence through greater understanding of the defense and security challenges. और it contribute to the establishment of ASEAN security community that stipulated in the Bali Concord II. And this aims to promote the implementation of Vietnam Action Program or ASC. Now what is ADMM plus, which I have told you in the beginning. ADMM plus की अगर बात करें तो यहाँ पे ASEAN के साथ 8 डायलॉग पार्टनर कंट्रीज है, that include Australia, China, India, Japan, New Zealand and ROK, Russian Federation and United States. So these are the countries that were the part of the cooperation in promoting peace, stability and development in this region. और जो inaugural ADMM plus थी, that was convenes in Hanoi in Vietnam in 2010 itself. So it started basically in 2010. नाउ ADM प्लस की अगर बात करें तो उसके कुछ प्रॉपर कॉपरेशंस के एरिया हैं, 7 पिलर्स हैं जिस पे ज़्यादा डोमिनेंस होती है, जिस पे फोकस होती है ADM प्लस की. सो दिस कैन बी अ वेरी पॉसिबल क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेकंड इज काउंटर टेररिज्म, थर्ड इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, फोर्थ इज पीस कीपिंग ऑपरेशंस, फिफ्थ इज मिलिट्री मेडिसिन्स, sixth is humanitarian mine actions, and the last is cyber security. Now the second topic is Indo-Pacific Ocean Initiative, also known as IPOI. तो ये ईस्ट इंडिया जो समिट हुई थी बैंकॉक में 2019 में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था कि कोऑपरेटिव एफर्ट्स होनी चाहिए टू ट्रांसलेट इंडो पैसिफिक इनटू द सिक्योर एंड मैरीटाइम एनवायरनमेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग नेशन. जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री है उनकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो ओवरऑल मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको कैसे ज़्यादा कोऑपरेटिव बनाया जाए, उसके लिए ये इनिशिएटिव है फॉर स्पेसिफिकली इन द इंडो पैसिफिक रीजन. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कॉपरेशंस हैं, इनके भी 7 पिलर्स है, दैट इंक्लूड मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कॉर्पोरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. तो जो IPOI है, इन्होंने 7 इंपॉर्टेंट कॉपरेशंस पिलर्स बताए हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें काम करती हैं. दीज आर द ब्रॉड एरिया अंडर विच द एंटायर कॉपरेशन वर्क. नाउ और कुछ अगर बात करें इसके प्रॉपर काम करने के तरीके की, तो इट सीम्स टू वाइडन द स्कोप ऑफ इंडो पैसिफिक मैरीटाइम नैरेटिव बियॉन्ड द सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस दैट ऑल्सो इंक्लूड. इसके अलावे सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस के अलावे उस रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो है मैरीटाइम डोमेन को लेकर के, दैट आर ऑल्सो टेकन इन टू द कंसिडरेशन. Now, this initiative will highlight India's endeavor to seen in the value partner comprehensive security, sustainable development में, where power and influence become a very important factor. Now, PASSEX exercise, this is again very much important for the prelims examination. This was being taken care by Indian Navy
और जो रशिया फेडरेशन की जो नेवी है उनके साथ ही मिल करके इंडियन ओशन रीजन पे एक्सरसाइज की गई थी। ये एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करती है रूफेड गाइड मिसाइल दैट इज नोन एज क्रूजर वारिक, एंटी सबमरीन मिसाइल एडमिरल पेंटेलेवी एंड मिड ओशियन टैंकर दैट इज कॉल्ड पेंचिगा। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज थी दैट एनहांस द इंटरपोर्टेबिलिटी, improving the understanding and embedding best practices between the both countries. By both countries I mean Russia and India, right? So these are the two countries that would be taken into the consideration. और ये एक्सरसाइज बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में ही है इन द इंडियन ओशन रीजन। सो ये 3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। नाउ बेसिकली अगर नेवीज की बात करें तो दे इन्वॉल्व एडवांस सरफेस टू एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज, वेपन फ्लिपिंग होती है, सीमैन वॉरशिप होती है एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस एक्सरसाइज। Now, Mahakali Treaty is between the Government of Nepal and the Government of India regarding the development of water seed in the Mahakali River. So, for you it is important to locate the Mahakali River. So, आप एक बार मैप पर जरूर देख लें कि महाकाली रिवर कहाँ पे है। Now, the treaty was signed in 1996. So, this was there in the news. So, I thought to include this. This can be a very possible question in the prelims examination. Now, Article 12 of the article that calls for the treaty की जो Article 12 है that called for integration of the development of barrage, dam, hydropower and mutual cooperation between two countries. और ये जो treaty है ये recognize करती है महाकाली river as a boundary between the two countries, right? So this river location is very important. Make sure आप इसके जो location है उससे अवगत हो। Now some short news that would be again very much important for you in terms of the prelims examination. Also you can use that as a fodder point in the general studies paper. CoWIN digital platform, we already had a discussion regarding this. एक online platform बनाई गई है that will allow citizen to register for the vaccination. उनके overall जो status है उनको monitor किया जाएगा। QR based electronic vaccination certificate provide की जाएगी after the completion of the process. So CoWIN digital platform for COVID-19 vaccinations. Now, India Water Impact Summit, IWIS, ये 5th India Water Impact Summit थी that organized by the National Mission for Clean Ganga Center and Ganga River Basin Management that was started for the theme of comprehensive analysis and holistic management of local river, ठीक है, जहाँ पे Earth of Ganga Conservation recognized development को लेकर के काम की गई है। Now 17th A ship, this is like Himgiri, the first 3 project of the 17 A ship being built by MS Garden Research Shipbuilder Engineers. This is Calcutta based और ये recently launched की गई है नेवी के लिए। So under this project 17A की अगर बात करें तो आप 17A याद रखें, this is a ship and this is for Indian Navy जो Maxon Dock Shipbuilder Limited है, MDL जो है ये खास करके इन्होंने अपने एडवांस सीलेट एडवांस इंडिजिनस वेपन सेंसर विट और इसको किस तरह से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सकता है सेवरल अदर पार्ट में, खास करके टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट और द शिप दैट हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस। बात करें P-17A शिप्स की, दे आर द फर्स्ट टर्बाइन प्रोपल्शन लार्जेस्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म दैट वाज बिल्ड बाय द GRSC, राइट? सो दिस इज GRSC। विज्ञान यात्रा जो है एक प्रमोशनल एक्टिविटी है फॉर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल और ये जो एक्टिविटी है दिस कॉल फॉर मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बैंक दैट वुड बी फ्लैग ऑफ फ्रॉम द कंट्री। और विजन जो है साइंस जर्नी टू प्रमोट द साइंटिफिक टेम्पर दैट वुड इनकलकेट द कल्चर ऑफ साइंस अमंग द मासेस एंड बाय मासेस वी मोस्टली मीन द स्टूडेंट, राइट? तो जो खास करके स्टूडेंट कम्युनिटी है दैट वुड बी देयर इन दिस। सो स्टूडेंट वुड बी इंक्लूडेड, स्टूडेंट्स एंड जो खास करके क्लास 12 11 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए दिस वुड बी द मोर पार्टिसिपेटरी। कॉलेज में भी इसके एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाएगा। नाउ डाक पे UPI ऐप, रिसेंटली डाक पे लोगो वाज लॉन्च्ड बाय द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपको पता होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च की गई थी 3-4 साल पहले। Now this is something which is very important because payment bank for the postal is important with the rural India. तो एक पार्ट ऑफ ऑनगोइंग डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए किया गया। और डाक पे UPI अलाउ यूजर्स टू क्रिएट UPI ID लिंक, मल्टीपल अकाउंट होंगे अक्रॉस द बैंक इन द सिंगल मोबाइल ऐप। और ये ऐप की जो फैसिलिटी है उसमें इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी दी गई है, QR बेस्ड पेमेंट होगी मर्चेंट स्टोर पे एंड ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। नाउ
TropMet 2020. This is by the Indian Meteorological Society in collaborations with the Northeastern Space Application Center, शिलोंग में जो लोकेटेड है. इन्होंने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था 4-day वर्चुअल सिनॉप्सिस सिम्पोजियम को, जिसको इनमें वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज माउंटेन रिलीजियस एट NESEC. दिस इज NESEC. और रिसेंटली जो डॉपलर वेदर रडार है, दिस इज नोन एज DWR. दिस इज एन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन दैट वाज सेट अप एट हिमास ऑब्जर्वेटरी वेस्टर्न हिमालयस, राइट. तो ट्रॉपमीट की अगर बात करें तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. दैट वाज बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड दैट वाज टुक प्लेस बाय NESEC शिलोंग, राइट. और उसकी जो पूरी थीम थी दैट वाज वेदर क्लाइमेट सर्विसेज ओवर द माउंटेन रीजन. So these things are important. So this was all the news comprising general studies paper 2, 3, short news and some military exercise that was relevant for the month of December. And those of you who are new to our channel, you can watch our daily topic-wise news analysis, which I used to take on daily basis, where the coverage is from the Hindu and from Indian Express. So this will help you to save a lot of time from the newspaper, because we cover the news that is relevant and additionally supplement this news with some add-on information that can help you in prelims and mains examination. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe APTI PLUS Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. You can share this video with your friends, those who are preparing for civil services examination. This might be helpful for them as well. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.